Training Program Phase 2 for CTET aspirant under the leadership of Head Education and Child Development Ms. Deborati Bose and our Principal Dr. Mukhtar Rathi. In accordance with the provision of subsection 1 on section 23 of Right to Education Act, the National Council for Teacher Education declared that CTET is the minimum qualification for a person to be eligible for appointment of a teacher from class 1 to 8. This test include study of child psychology, Hindi, English, social sciences and mathematics. The main objective of conducting this program is to transfer sufficient subject matter for expertise and develop correct teaching mindset. And today's resource person of today's session is Ms. Pooja Arya. She is assistant professor at Jane Call Institute of Education, and she will be given overview on the topic of Confab on English language. Over to you, ma'am. Okay, ma'am. Pooja, ma'am, are you listening me? Wait a minute. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Thank over you, to you. ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I welcome you all again on the session on Confab on English language. Yesterday we were discussing some important points of basic grammar. We have discussed yesterday parts of speech, figures of speech, articles, and antonyms, synonyms. We are discussing today. So now I would like to share my screen. Please tell me if my screen is visible. Now is it visible? Geeta, ma'am, your mic is on. Please mute yourself. Yes, ma'am, you are Ma'am, visible. okay. My screen, ma'am, not me. Is my screen visible now? Yes, ma'am, your screen is visible. Okay, okay. So yesterday we were discussing basic grammar parts like parts of speech, articles, figures of speech, and today we'll be discussing antonyms, synonyms, some foreign words, and wait a minute, just wait a minute, please. Okay, some foreign words and phrases, and we'll do some to do exercises today. So we'll have a quick revision from the first. We have discussed parts of speech. There are complete 8 parts of speech we have. First one is noun, second one is pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction, interjections, and we have also done some exercises relating to them. I think there is no need to revise it again. I think. Okay, we'll start from. Wait a minute. We will start from figures of speech again because we have to do some exercises related to it. First one, as I said, that figures of speech. You know, figures of speech is especially used in poetry to embellish it. Just like women's use ornaments, women like used to wear chains, we wear, they used to like to do makeup and all just to embellish themselves. Similarly, we have figures of speech to embellish our poetry, to embellish our sentences and all. Okay, so first one is simile. Simile is a figure of speech in which two things are compared using like, as, so much. Actually ये हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया है, तो आई डोंट थिंक इट डजंट नीड एनी more stress to give it. तो सिमिली में क्या है कि हम एक दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज एंड सो. एग्जाम्पल, हर चीक्स आर लाइक अ रेड रोज. चीक्स को और रेड रोज को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग द वर्ड लाइक. Next one is metaphor. Again, simile. As I said, as I told you earlier, the simile and metaphor are same. They have some similar qualities, but here there are some minute differences also which you have to understand, which you have to note down. Figure of speech that is used in an imaginative way to show that somebody or something has the same qualities and as another thing.
See, that is there is not mentioned that they have the same comparison, but I have mentioned that they have same qualities as another thing. But you have to remind it that they also have same comparison. Okay, but in metaphor we don't use these words as so and like. Okay, you can see the example. Her words were a knife in his heart. सी यहाँ पे वर्ड्स को किससे कंपेयर किया जा रहा है, नाइफ से कंपेयर किया जा रहा है. जस्ट लाइक नाइफ हैव अ शार्प एज, सिमिलरली हर वर्ड्स हैव शार्प एज, विच जो कैसा काम करता है उस पे, उसके हार्ट पे खंजर का काम कर रहा है उसके वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, सिमिली में देखेंगे वहां पे भी एक कंपैरिजन हो रहा है. बट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट मेटाफोर में इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, एक हिडन कंपैरिजन है. ठीक है, इस पे आप लोग कंफ्यूज ना हो. नेक्स्ट हमारे पास पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जिसमें हम एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को अम, और या फिर हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इस तरह से शो करते हैं, लाइक इट इज अ ह्यूमन बीइंग, लाइक इट इज अ लिविंग बीइंग. दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक. जो सूरज है वो अपनी किरणों को इक्वली बिखेरता है अमीर अमीर लोगों में भी और गरीब लोगों में भी. अब देखो यहाँ बिखेरता है, हम इससे क्या समझ रहे हैं. तो हमने यहाँ पे उसे क्या कर दिया, सन को हमने एक लिविंग बीइंग बना दिया है ना. करता है हम यूज कर रहे हैं उसके लिए. अदरवाइज एक प्रॉपर हम सिंटेक्स की तरफ से देखें, एक प्रॉपर ग्रामर यूज करें, तो हम सन के लिए यहाँ पे इट यूज कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे उसके लिए हिज यूज किया गया है. हिज अक्सर किसके लिए हम यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन, मेल के लिए, राइट. मेल के लिए, मैन के लिए, बॉय के लिए हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे सन के लिए यूज किया, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है. तो एक नॉन लिविंग थिंग को जब हम लिविंग थिंग बनाते हैं तो दैट इज नोन एज personification. Okay, this figure is known as personification. Next one is hyperbole. Figure of speech which is used to make a fact exaggeration is known as hyperbole. जहाँ पे हम बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, that is known as hyperbole. Okay, जहाँ पे हमने काफी ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, काफी बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं. जिस तरह से एग्जाम्पल दिए आप देख सकते हैं, इफ द रिवर वर ड्राई शी इज एबल टू फिल इट विद टीयर्स. मान लो अगर रिवर सूखी है तो वो इतनी सक्षम है कि वो अपने आंसुओं से उसे भर सकती है. दैट इज कम्प्लीटली इन रियल लाइफ, दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है एक नदी को अपने आंसू से भर देना, इम्पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या किया गया है, उस सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो दैट इज नोन एज हाइपरबोल. नेक्स्ट वन इज euphemism. A figure speech which is used to say an unpleasant thing in a pleasant manner is known as euphemism. जहाँ पे कोई ऐसी अनप्लीजेंट कुछ भी मैटर होता है, कुछ भी बात होती है, उसको एक कहने का एक बहुत प्लेजेंट तरीका होता है. ठीक है, किसी अनप्लेजेंट थिंग को हम बहुत एक प्लेजेंट वे में उसको परोसते हैं, उसको सर्व करते हैं. दैट इज नोन एज यूफेमिज्म. शी इज टेलिंग मी अ फेरी टेल. मैंने कल ही बताया था, शी इज टेलिंग मी फेरी टेल. यहाँ पे फेरी टेल का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ परी कथा सुना रही है. इसका इनडायरेक्ट क्या मीनिंग है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट शी इज टेलिंग अ लाई टू हर. Right, he has fallen asleep. He has fallen asleep means he is no more now. Okay, for the additional information I would like to tell you that euphemism was actually introduced by John Lilly. Actually he was university wit during 16th century, during Elizabethan period. He was one of the university wits who introduced euphemism. Okay, next one, irony. A figure of speech which is used to express the opposite meaning which is different from the real meaning is known as irony. इसका मैंने कल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आंख के अंधे नाम नैन सुख. ठीक है, इसमें आयरनी है. अब इसमें आयरनी कैसी है कि हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है. अब आंख के वो अंधे हैं लेकिन नाम क्या है उसका, नैन सुख. अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है वो, तो इसी को हम कहते हैं आयरनी. दैट इज नोन एज आयरनी, राइट. नेक्स्ट वन इज alliteration. As I told you, these two figures of speech, alliteration and assonance, are both similar, but they have again minute difference. Repetition is in both of these figures of speech, but in alliteration there is the repetition of consonant.
Okay, we have some alphabets. In these alphabets we have five vowels and the rest of them are consonants. So in alliteration there is a repetition of consonants, just like the example, the Peter Piper picked a pack of pickled peppers. There is a consonant P which is repeating again and again in these words, like Peter Piper picked, packed, pickled and peppers, right? This is alliteration. Next one, assonance. In assonance there is a repetition of vowels. Okay, इसे ध्यान में रखें, एलिट्रेशन में हमारा रिपीटिशन हो रहा है कॉन्सोनेंट्स का, बट एसोनेंस में है वॉवल्स का. Just like the example, the rain in Spain stays mainly on the plains. There you can see that in this example, in these words, rain, Spain, mainly, plains, and stays, there is the repetition of vowels. A भी इसमें repeat हो रहा है, I भी repeat हो रहा है, तो यहाँ पे vowels repeat हो रहे हैं, तो it is known as assonance. Next one is antithesis, a figure of speech which is used to express the two contradictory qualities. एंटीथीसिस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन बिल्कुल सिमिलर हैं. अगेन इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. दोनों में क्या है, जैसे मैंने बोला, इसमें एंटीथीसिस में ऑक्सीमोरन में आपको क्या मिल जाएंगे, वर्ड और अपोजिट. अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, बट क्या है इनका थोड़ा प्लेसमेंट का एक डिफरेंस है. इट्स लाइक एंटीथीसिस में दो एक वर्ड और अपोजिट आपको मिलेगा, बट ये इस तरह से प्लेस किए गए होंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस होगी, या हम कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स अकर करेंगे यहाँ पे, राइट. और सिमिलरली ऑक्सीमोरन में क्या है, ऑक्सीमोरन में भी आपको वर्ड अपोजिट मिल जाएंगे, बट दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, राइट. एंटीथेसिस का एग्जांपल आप देख लेंगे, स्पीच इज साइलेंस बट सिल्वर इज गोल्ड, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. स्पीच और साइलेंस दोनों वर्ड अपोजिट है. स्पीच का मतलब है जहाँ पे हम बोल रहे हैं, साइलेंस बिल्कुल शांति, तो बिल्कुल होगा ये एक दूसरे के विलोम शब्द, है ना. बट यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, मैंने कहा था डिस्टेंस में होंगे या इनके बीच में कोई भी वर्ड आएगा या ढेर सारे वर्ड्स आएंगे. तो इसमें इज आया है बीच में, ये साइड बाय साइड नहीं प्लेस किए गए हैं, तो इट इज एंटीथेसिस. और सिमिलरली ऑक्सीमोरन में जिस इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें भी सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी वर्ड अपोजिट होगा. बट एग्जाम्पल पे आपने एक कल एग्जाम्पल बताया था मैंने, लाइक शी इज ब्यूटीफुली अगली, वो बहुत सुंदर तरीके से बदसूरत है, राइट. शी इज ब्यूटीफुली अगली, यहाँ पे ब्यूटीफुल और अगली दोनों कैसे वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स है, राइट. बट यहाँ पे बिल्कुल उनको साइड बाई साइड प्लेस किया गया है, यहाँ पे कोई बीच में कोई सेकेंड वर्ड नहीं आया. तो एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन का बस यही बेसिक डिफरेंस है. आई थिंक दोबारा से रिवाइज करने के बाद ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. फर्स्ट वन, you have to find out which figure of speech is used here. Okay, you can see the first one. My feet are killing me. Who's gonna tell me which figure of speech is used here? My feet are killing me. Anyone? Give me answer fast, fast, fast. कोई भी आंसर दीजिए, and take your time please. Please turn on your mic. Are you listening to me? And मैम हाइपरबोले. very good. That is hyperbole. ओके, अब देखिए इसमें हाइपोबोल यहाँ पे क्यों यूज किया गया है. जैसे मैंने पहले बताया था, हाइपोबोल में क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, राइट. और यहाँ पे माई फीट आर किलिंग मी, ऐसा हो सकता है क्या रियल में? पैर खुद को खा सकते हैं, मतलब अपने पैर खुद को खाएंगे, ऐसा नहीं है. बट उसमें हमने सेंटेंस में क्या किया, बड़ा चढ़ा के बोला गया. इसका मीनिंग वैसे कुछ और है, कि मतलब उसके पैर में दर्द है या समथिंग, या उसके फीट में अकड़न है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या है, हाइपरबोल यहाँ पे यूज किया गया है. नेक्स्ट वन इज, आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी. आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खाना मुझे बुला रहा है. अब तो मैंने ट्रांसलेट भी कर पर्सोनिफिकेशन. दिया, वेरी सॉरी. पर्सोनिफिकेशन.
Oh, very good, very good. It is personification. हमने यहाँ पे क्या कहा? I felt like, मुझे ऐसा लगा जैसे खाना मुझे बुला रहा है. अब खाना बुला रहा है, खाना यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, बट हमने उसे पर्सोनिफाई कर दिया. We have personified it and we have made it a living thing. तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग को हमने लिविंग थिंग बनाया है, तो दिस इज personification. Okay, next one. The police station gets robbed. The police station gets robbed. Irony. Mm, yes. Why? Irony, why? Can you Ma'am, explain? because the police station itself is the place where the cops are there to catch the robbers. So this is Exactly, irony. exactly. So irony is used in this sentence. Very good. Okay, let's move on to the next one. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Take your time and please try to give the correct answer. That's one small step for man, one giant leap for mankind. See, you can see there are two words which are opposite to each other. Can you identify those words? Try to identify. Take your time. That's one. Small and giant. Sorry, giant and what? Small. Yes, exactly. Small and giant. So, which speech is used here? Which figure of speech is used here? Metaphor. No. See, we have for this word in opposite a sentence in which there we can see a word in opposite. It means there is used maybe antithesis or oxymoron, but you have to identify only one of them. Whether it is antithesis or oxymoron, who will tell me? It is antithesis. You can see in this page, a figure of speech which is used to express two contradictory qualities of the same thing is known as antithesis, but they are not placed side by side. Are you getting me now? See, इसमें क्या है ना, देखो फोर्थ में देखें आप, देयर दैट वन स्मॉल और जाइंट, यहाँ पे आपके दो वर्ड अपोजिट हैं, बट देयर आर मोर देन वन और टू words occurring between them. That is why antithesis is used here. Got it? Okay, next. Fifth, Tanya left the painting completely unfinished. Tanya left the painting completely unfinished. I think now it is easy to you to identify which figure of speech is used here. Tanya left the painting completely unfinished. Try to give the answer. Take your time, but don't interpret it wrong. Yes, anyone? Tell me fast. Sania left the painting completely unfinished. As you can see that in the last two words, we there are the words completely and unfinished in this sentence. In the last, we have one finished and completely. These two words are completely opposite to each other. One is complete and one is unfinished. Oxymoron. हाँ, एक बिल्कुल कंप्लीट और एक अनफिनिश्ड, और आप देख सकते हैं ये इनको बिल्कुल साइड वाइज प्लेस किया गया है, साइड बाय साइड. अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे कोई और वर्ड आ रहा है उसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरॉन. जैसे कि मैंने बताया एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन एक जैसे हैं, इसीलिए मैंने ये फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल बिल्कुल साथ में रखे हैं, जो कि आप लोग को समझ में आ जाए. सानिया लव द पेंटिंग कंप्लीटली अनफिनिश्ड. सानिया ने पेंटिंग बिल्कुल पूरी तरीके से उसको अनफिनिश्ड रखा है, अधूरा रखा है. देखो, पूरी तरीके से भी, पूरा भी वो बोल रहा है और अधूरा भी बोल रहा है ना? तो क्या है ये?
oxymoron. Next one. Six, we have Imran is always as busy as a bee. Imran is always as busy as a bee. इमरान Simile. हमेशा मधुमक्खी की तरह बिल्कुल बिजी रहता है. इन केस आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप ये देख सकते हैं. एक बार ये लिस्ट दोबारा से आप देख सकते हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है. सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल, यूफेमिज्म, आयरनी, अलिट्रेशन. कोई बात नहीं, अपना टाइम लीजिए, इसे पढ़िए और मुझे एक बिल्कुल करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए. सिमिली है हमारे पास, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, यूफेमिज्म है, आयरनी, अलिट्रेशन. Ma'am, simile. वेरी गुड. सिमिली. बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमरान को हम As बी is से used. कंपेयर कर रहे हैं. इमरान और बी का कंपैरिजन हो रहा है यूजिंग द वर्ड एज. ओके. जहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया लेकिन किस वर्ड का यूज किया है, एज का यूज किया है. जैसे कि पहले बताया, सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज एंड सो. यहाँ पे एज का यूज किया गया कंपैरिजन पर, तो सिमिली इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वन. The company has been facing negative cash flow for the past few years. The company has been facing negative cash flow for the past few years. Okay, I'll give you the hint. Um, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन तीन फिगर ऑफ स्पीच में से एक यूज हुआ है. अब तो देखिए, मैंने हिंट भी दी है आप लोगों को. Try to identify the correct figure of speech. I'll show you the question again. The company has been facing negative cash flow for the past few years. पिछले कुछ सालों से कंपनी एक नेगेटिव कैश फ्लो फेस कर रही है. इट मींस कुछ नेगेटिव चल रहा है. बता सकते हैं. अब मैंने एक आपको हिंट भी दी है, क्लू भी दे दिया कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में से यूज हुआ है. Ma'am, you fifth one. वेरी गुड. यूफेमिज्म इसमें यूज हुआ है. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है. अब उनको, उनकी कंपनी को एक लॉस हुआ है, बट उस लॉस, अब वो है तो एक कुछ अनप्लीजेंट थिंग, राइट. लॉस होना कुछ अनप्लीजेंट थिंग ही है, तो उसको उन्होंने सेंटेंस में एक प्लेजेंट वे में उसको डिस्क्राइब किया है. तो यूफेमिज्म इज यूज्ड हियर इन दिस लाइन. यूफेमिज्म इज यूज्ड हियर. ओके, नेक्स्ट वन. बैडी बॉट बटर बट द बटर वाज बिटर. ये तो बहुत इजी है. Alliteration. Very good. Alliteration. Alliteration. Why? Could you please explain? Yes. Sorry, your voice is not Ma'am, the clear. sound of the हाँ. consonants is सेवंथ वाला repeated. अल्टरनेशन वाला. Very good. Here consonant is repeated again and again in the words. Betty bought butter, but the butter was bitter. It is also a tongue twister. ये टंग ट्विस्टर अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो ये है, बैटी बॉट बटर बट द बटर वाज बिटर, सो शी बॉट बेटर बटर टू मेक बटर बिटर बेटर. ओके, नेक्स्ट वन. गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग्स बाइट. गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड bugs bite. Okay, now tell me which figure of speech is used here. Good night, sleep tight, don't let the bed bugs die. Take your time and try to give a correct answer. You have only 5 seconds. Okay, so assonance is used here. Okay, as I said, in alliteration there is the repetition of consonant, but in assonance there is the repetition of vowels. यहाँ पे vowels तो repeat हुए हैं, like यहाँ पे o, sorry, I आपका यहाँ पे काफी टाइम repeat हुआ है, o भी यहाँ पे repeat हुआ है, right? तो इसमें आपका assonance है. And next one is he is a lion when he comes to the field. He is a lion when he comes to the field. ये देख सकते हैं आप दोबारा से.
he is the lion when he comes to the field. इसमें यूज हुआ है आपका मेटाफर. ओके, टेंथ में आपका यूज हुआ है मेटाफोर, बिकॉज यहाँ पे भी एक कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. ठीक है, उस आदमी का, किसी एक आदमी का लायन से कंपैरिजन हुआ है. वो कहता है कि वो तो बिल्कुल एक शेर की तरह है, जब वो मैदान में उतरता है, मैदान पे आता है. ठीक है, उसका लायन से कंपैरिजन किया है, बट यहाँ पे उन्होंने लाइक वर्ड का यूज नहीं किया, उन्होंने एज वर्ड को यूज नहीं किया, सो यूज नहीं किया उसने, राइट. आई थिंक इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गए होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी हैव एंटोनिम्स. Okay, who will tell me the meaning of antonyms? What are antonyms? What we call antonyms in Hindi? Anyone? मैम विलोम शब्द. विलोम शब्द. Vilom. Okay, very good. Vilom Shabd. So in this slide we have 15 words, and you have to find out their antonyms. You can take your time and try to give me the correct answer. आप लोग एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए प्लीज, और जल्दी से सॉल्व कीजिए. बहुत इजी है, जो कि बहुत बार आपके काफी एग्जाम्स में ये वर्ड्स आए हैं. इसे सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी से. You have 3 minutes for it. First one is awake. Awake का मतलब होता है जागना. Next is confident. Confident is इसका मतलब है कि आत्मविश्वास होना, right? Next is fatigue. Fatigue जिसमें हम बहुत थक जाते हैं. Elevation. It means a raised platform is known as elevation. Then is arrive. Arrive means to reach somewhere. Ancestor. Ancestor means पूर्वज. Aristocrats. Aristocrats जो high profile people होते हैं. Benefactor. Benefactor means a person who helps or gives money to a person or an organization. That is known as benefactor. ठीक है, एक ऐसा आदमी या एक ऐसा पर्सन जो किसी पैसा दान करता है लोगों को जो नीडी हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करता है. दैट इज बेनिफिशियल. नेक्स्ट वन इज कॉनकॉर्ड. कॉनकॉर्ड मीन्स पीस एंड एग्रीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज 10th इज फॉरेन. फॉरेन आपको पता है, विदेश. फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मीन्स दैट इज समथिंग विच इज डाउटफुल. एंड नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला. इंफीरियर जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं, इंफीरियर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जो थोड़ा पीछे रहता है, राइट. दैट इज इंफीरियर. इनसफिशिएंट जो पूरा ना हो. जोवियल. जोवियल मीन्स थोड़ा खुश मिजाज, राइट. ये 15 है एंटोनिम्स. आई थिंक कर लिए होंगे आप. 3 minutes हो चुके हैं. Okay, who will tell me what is the antonym for awake? Antonym for awake? asleep. Asleep. Very good. Okay, अपने अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं. 15 हमारे पास हैं, आप लोगों ने पेन पेपर रखा है अपने पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद को रिमार्क्स दे सकते हैं, खुद को मार्क्स दे सकते हैं कि आपके, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताएंगे कि 1 to 15 में कितने आपके करेक्ट थे, राइट. ओके, अवेक का है अस्लीप. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट के लिए क्या वर्ड है यहाँ पे, एंटोनिम क्या है. diffident. वेरी गुड, डिफिडेंट. एंड नेक्स्ट वन इज फैटीग. फैटीग. व्हाट इज द एंटोनिम फॉर फैटीग हियर. रिफ्रेश. Very good, refresh. Next one is elevation. What is the correct antonym for elevation? It is depression. Okay. When elevation is a raised platform, so depression is the lower platform. Okay. Next one, arrive. डिपार्ट. depart. Depart. Very good.
And next, ancestor, Descendant. descendant. Very good. Where ancestor is purvaj and descendant means vanshaj, right? Next one is benefactor. As I told you, benefactor is a person who donates money to the needy or the organization. So, what will be the correct antonym for benefactor? Malefactor. Very good, malefactor. Next one is concord. Concord is peace or agreement. Peace and agreement. Discord. Concord, sorry, Discord. discord. Very good, discord. Next one is, tenth is foreign. Foreign means Native. join over river. Very good, native. Foreign means the Videsh, and native Desh. Desh, Videsh. Next one is fictitious. Fictitious is something that is doubtful, which is not real. Real. Very good, real. Okay, next one is flexible. Flexible means lachila. What will be the correct antonym for it? Rigid. Very good, rigid. Next one, insufficient. Flexible, okay. Sorry, we missed this 13th one. Inferior. Superior. Very good, superior. Insufficient. Insufficient. Plenty. Very good, plenty. Next one is 15th one is jovial. We have only one antonym left, that is, yes, Gloomy. gloomy. And I think we have missed the aristocrat also. What will be the antonym for aristocrat? Commoner. कॉमनर. वेरी गुड. ओके, जैसे कि मैंने वो कहा था, एक पेन पेपर अपने पास रखेंगे आप लोग और खुद को ऑनेस्टली आप मार्क्स देंगे. तो इन केस आपने ऐसा किया तो मुझे आप बता सकते हैं किसके कितने करेक्ट थे. ऑनेस्टली बताएंगे. 13 correct. वेरी गुड मैम, वेरी गुड. कीप इट अप फॉर द नेक्स्ट राउंड. ओके, नेक्स्ट वन इज, okay, now try to solve it. First one, these are also word and antonyms. In the left side you can see there are some words 1 to 15, and the right side we have antonyms, so you have to match them correctly. First one is loquacious. Loquacious means someone who talks too much, जो बहुत बातूनी होता है, उसको हम loquacious बोलते हैं, right? Next one is, second is later. Later means बाद में. नेक्स्ट है हमारे पास मोनोगैमी. मोनोगैमी मीन्स व्हेन अ पर्सन मैरीज मोर देन वंस, राइट? एंड नेक्स्ट, नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी होता है. रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मतलब नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, मतलब अनिच्छा से जो काम किया जाता है. नेक्स्ट वन इज परमिट. परमिट परमिशन देना, दैट इज परमिट. टेरेस्ट्रियल, जो यहाँ पे अर्थ में जो अर्थली क्रीचर्स होते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं. नेक्स्ट वन इज, एट वन इज जेनिथ. जेनिथ होता है एक टॉप पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट होता है. टेरेस्ट्रियल टॉप मोस्ट पार्ट होता है, या हम उसे कहते हैं वी कैन सी द सेलेस्टियल, सॉरी, सेलेस्टियल टॉप मोस्ट पार्ट, दैट इज जेनिथ. एंड नाइन्थ वन इज विजडम. विजडम पता है आपको, अक्ल हम इसे कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज वैकेंट. वैकेंट मीन्स खाली. 11th one is transparent. Transparent, that is something which is see through. And 12th is niggard. Niggard means miser or greedy, जो बहुत कंजूस होते हैं, those are known as niggard. 13th one is microcosm. Microcosm means small example. ठीक है, जैसे माइक्रो से हमें समझ आ रहा है स्मॉल. माइक्रोकॉस्म मीन्स स्मॉल एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन, 14th one is pragmatic. Pragmatic, what is pragmatic? Pragmatic is dealing practically rather than being idealistic. Pragmatic में हम practical होते हैं rather being idealistic. And 15th one is ostensible. Ostensible means seeming to be true but not necessarily true. जो बस लगता है कि ट्रू है बट वो रियल में ट्रू नहीं है. तो अपना टाइम लीजिए और try to give the correct answer now. You have only 3 minutes.
We have loquacious, batuli, later, monogamy, necessary, reluctant, karmic, terrestrial, zenith, wisdom, vacant, transparent, निगाड, मैक्रोकॉन, pragmatic, ostensible. बट लेफ्ट हैंड में जो वर्ड्स हैं मैं इनके मीनिंग नहीं बताऊंगी बिकॉज इनके मीनिंग मैं बताऊंगी तो ऑफ कोर्स इट विल बी easier to you to correct it matchly. आई थिंक ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था. तो ये हो गया. ओके, विल टेल मी व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर loquacious. Correct antonym for loquacious. Loquacious means someone who talks too much. Taciturn. Very good. Taciturn is the correct answer. Next one, later. Later, Earlier. earlier. Good. Monogamy, Polygamy. polygamy. Necessary. Yes. Necessary. Optional. Very good. Optional. Next is reluctant. अनिच्छा से जो काम करते हैं. Willing. Very good. Willing. Next, sixth is permit. Permit, permission देना. Prohibit. Very good. Prohibit is the correct antonym for it. Next one is terrestrial. Seventh one is terrestrial. Celestial. Celestial. Eighth one, zenith. Nadir. Nadir. Good. Ninth, wisdom. Wisdom. Take your time and try to find out the correct answer. Nadir. Vacant wisdom, sorry. Wisdom. Ignorance. Tenth one is vacant. Vacant. Occupied. Occupied. Very good. Occupied. Okay, next one is negad. Negad. 12th one is negad. As I told you, negad is someone who is miser or greedy. Negad. That is spendthrift. Okay. Spendthrift जो बहुत खर्च करता है विदाउट टेकिंग एनीथिंग इन कंसर्न, जो बहुत खर्च करता है, खर्चीला होता है. तो निगार्ड जो होता है माइजर, कंजूस, इसका जस्ट अपोजिट है स्पेंडथ्रिफ्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज माइक्रोकॉस्ट. Macrocosm. वेरी गुड. pragmatic. Pragmatic. Pragmatic is someone who deals practically. So what will be the correct antonym for it? Idealistic. Okay. Next one, 15th one is ostensible. Ostensible. I think that there is only one antonym is left. That is actual. Ostensible. Actual. Ostensible. As I told you, ostensible means something that is seems to be true but not necessarily true. ठीक है. जो सिर्फ दिखता है, ट्रू दिखता है, रियल दिखता है पर होता नहीं है. तो उसके लिए एग्जैक्ट एक अपोजिट वर्ड क्या होना चाहिए? Okay, now let's move on to the next one. So now we have synonyms. What is the meaning of synonym in Hindi? In terms समानार्थी शब्द. वेरी गुड. समानार्थी या हम इसे पर्यायवाची कह सकते हैं. ओके, वी हैव 15 words and you have to find out their synonyms. First one is ability. एबिलिटी आपकी जो क्षमता होती है. अप्रिशिएट करना. फनी, गुड, ग्रेट, हार्डवर्किंग, इम्पोर्टेंट, इंट्रोवर्ट. अनइम्पोर्टेंट आप समझते. बाकी तो सारे इजी हैं. देखिए, इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी जो होते हैं. जज, लेजी, नाइस, मनी, मीन, लकी,
हाइपोक्राइसी, सारे के सारे बहुत इजी वर्ड्स दिए हुए हैं. On the other hand, we have duplicity, fortunate, unpleasant, capital, pleasant, humorous, satisfactory, extraordinary, cherish, significant, withdrawn, determined, idle, diligent, and skill. आई थिंक 15 ज़्यादा नहीं है बहुत और ना ही ये ज़्यादा डिफिकल्ट है. ओके, हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट विल बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर एबिलिटी? करेक्ट सिनोनिम फॉर Skill. एबिलिटी? स्किल. Skill. वेरी गुड. यस, स्किल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, एप्रिशिएट. एप्रिशिएट. होती है यार. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मेरी समझ फिट आ रही है, पता नहीं मेरा सर. एप्रिशिएट में हम किसी की प्रशंसा करते हैं, सोच राइट? रहे थे तेरे मम्मी क्या तेरे भी आ जाएगी. Cherish. वेरी गुड. चैरिश. चैरिश इज द करेक्ट आंसर. थर्ड, फनी. है ना. फनी. Humorous. Very good. Humorous. Humorous is the correct answer. Next one, we have good. कम हो जा रही है. Good. Fourth one is good. Tell me the correct answer. Pleasant. Very Pleasant. good. Satisfactory, madam. Satisfactory. Good. Satisfactory. Okay, ma'am. Right? Yes. Fifth, great. 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 Extraordinary. Very good. Extraordinary. फिर बड़ी Extraordinary is the correct answer for the word great. Okay, now next one, six, hardworking. Hardworking. जो बहुत मेहनती है, उसके लिए क्या सिनोनिम होएगा? Diligent is the correct answer. Okay. Diligent. Yes, Yes, ma'am. diligent is the correct answer. Next one, seventh, we have important. Important. Significant. Very good. Significant. Next one, introvert. Antarmukhi. Extrovert. Extrovert. No, madam. Extrovert is the antonym for it. You know, and we are talking about synonyms. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry. Yes, introvert. Mm-hmm. Take your time, but at least give me correct answer. Its answer is withdrawn. Withdrawn. Okay. Correct answer for introvert is withdrawn. Next one is judge. Judge. Judge करना है यहाँ पे. Okay. Judge. What will be the correct synonym for judge? Ninth one. That is determined. Okay. Next one is lazy. Lazy. What will be the correct synonym for lazy? Try your best. Try your best. Idle is the correct answer for you. Okay. Next one is nice. What will be the correct synonym for nice? Pleasant. Very good. Next one is money. Money. For Capital. money. Very good. Capital. Next one is mean. Mean. Next one is mean. Unpleasant is the correct synonym for mean. Okay. Next one is lucky. Fortunate. Very good. Fortunate is the correct answer. Next, last one, 15. Hypocrisy. Hypocrisy. What is the correct synonym for hypocrisy? Duplicity. Very good. Duplicity was the only one answer which was left in this row. Duplicity was the correct answer. Very good. Now, we
have some foreign words and phrases. And please, first of all, please clap for yourself because it was such a nice attempt. Now we have foreign words and phrases. फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं ये आपके टॉप एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सारे आप एग्जाम्स ले लीजिए तो उसमें भी ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ओके, तो ये मैंने सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सेट किया है ये पीपीटी, आपके सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस। बेसिक ग्रामर तो आप देखेंगे एक सेक्शन अलग से आता है, सारे एग्जाम्स में आता है ना। तो हम फॉरेन वर्ड्स भी इसमें काफ़ी आते हैं, ये फ्रेजेस भी काफ़ी यूज होते हैं, इनके मीनिंग्स आते हैं, राइट। तो पहला है एब इनिशियो। आपने एब इनिशियो सुना होगा, बट हमें पता है कि अभी ना हम पहली बात इनका मीनिंग हमें नहीं पता है क्योंकि ये फॉरेन वर्ड्स हैं। फॉरेन वर्ड्स आप कहीं से भी ले लीजिए, फ्रेंच से ले लीजिए, लैटिन से ले लीजिए, और भी सारी लैंग्वेज हैं यहाँ से उठा के ये वर्ड्स रखे हुए हैं, इसलिए इन्हें फॉरेन वर्ड्स कहा गया है। फॉरेन वर्ड्स को हम डेली लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ करते हैं, बट हमें इनका मीनिंग नहीं पता है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैंने जो मेन 15 है सिर्फ वही रखे हैं। फर्स्ट वन इज ab initio। ab initio का मीन्स है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, इट मीन्स ab initio, राइट। एक एग्जांपल मैं इसके लिए बता दूं, लाइक आई वॉज रीडिंग उर्दू ab initio। इसे आप इस सेंटेंस को आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई वॉज रीडिंग उर्दू ab initio, इट मीन्स आई वॉज रीडिंग उर्दू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट। नेक्स्ट वन इज ad hoc। ad hoc means established for a particular purpose। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई चीज़ स्टैब्लिश की जाती है उसे हम एड हॉक कहते हैं। अब हम कहते हैं कि लाइक शी और ही इज एन एड हॉक प्रोफेसर एंड एड हॉक टीचर। अब एड हॉक हम बोलते हैं बट उसका मीनिंग हमें नहीं पता है, हमें एक ये पता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे स्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज द राइट। नेक्स्ट वन इज एड एंटरिंग। एड एंटरिंग मीन्स इन द मीन टाइम, बिल्कुल मीन टाइम पे, दैट इज नोन एज एड एंटरिंग। एंड ट्राई टू मेक अ sentence yourself please, this is kind of homework to you। Next one is abid। Abid, it means in the same book, same chapter, same passage। आपने देखा होगा कोई बुक पढ़ते हैं आप, उसमें जो फुट नोट्स होते हैं, ठीक है, आपने कोई भी पेज आपने ओपन किया उसमें आपको फुट नोट्स मिल जाएंगे। फुट नोट्स में क्या होता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं हमने उन पे नंबरिंग की होती है, तो हम उनको फुट नोट्स में वहाँ पे उनको क्लैरिफाई करते हैं, राइट। आपने कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए उसका, तो उसमें कुछ पॉइंट्स पे इबिड लिखा होता है, हमें पता है, हमने वो देखा है, लेकिन उसका मीनिंग हमें नहीं पता। इबिड का मतलब क्या होता है, देखो जिस नंबरिंग पे, जिस नंबर पे वो इबिड लिखा होता है, उसका मतलब कि ये इसका मीनिंग क्या है, इसी सेम बुक में है या सेम चैप्टर में है या सेम पैसेज में है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अल्मा मैटर। अल्मा मैटर मीन्स मदर इंस्टीट्यूशन। मदर इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पढ़ाई कर चुके हैं, दैट इज अवर अल्मा मैटर, राइट। लाइक आई कैन से श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल इज माई अल्मा मैटर, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ाई की है। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्फा एंड ओमेगा। इट मीन्स बिगिनिंग एंड एंड, beginning and end, okay, alpha and omega। She was looking at me, alpha and omega, yeah, she was with me during my hard days, alpha and omega। Next, seventh one is ipso facto, by that very fact, it means by that very fact। Eighth one is prima facie, from the first impression। uh, जो पहला इम्प्रेशन होता है, जो पहला इम्प्रेशन हम कहते हैं, लाइक
He was looking studious prima facie. Are you getting me? He was looking prima facie at. He was looking studious prima facie. It means he was looking studious from the very first impression. वो बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत स्टूडियस लग रहा था, पहले इंप्रेशन में, पहली बार देखने में बहुत स्टूडियस लग रहा था. दैट इज नोन एज प्राइमा फेसी. नाइन्थ वन इज वाइवा वोस. वाइवा वोस मीन्स ओरल टेस्ट. आप ओरल टेस्ट, it means when your teacher asks you a question orally and you have to give answer orally, that is viva voce. Okay, next one is, ओके, सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे 10th क्वेश्चन, 10th वर्ड दोबारा से रिपीट हो गया. अल्मा मेट्रो, दैट इज मदर इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट वन इज 11th वन, बोनाफाइड. बोनाफाइड मीन्स रेगुलर. when I say just like I am a bona fide student of this particular institution, it represents that it signifies that I am the regular student of that institution. Right, मैं वहाँ पे एक रेगुलर पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ. दैट इज नोन एज बोनाफाइड. 12th वन इज मालाफाइट. अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप कहेंगे दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा स्पेलिंग भी सेम है, तो ये बिल्कुल अपोजिट क्यों नहीं है? बोनाफाइड का मतलब रेगुलर है, तो मालाफाइड का मतलब रेगुलर नहीं होना चाहिए. बट नो, हमेशा ऐसा नहीं होता है. मालाफाइड मीन्स एक्टिंग इन बैड फेथ. जब हम थोड़ा गलत हरकत करते हैं या फिर थोड़ा गलत तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज मालाफाइड. राइट. नेक्स्ट इज समम बोनम. इट मीन्स इम्पॉर्टेंट. We can say foreign words, and the topic foreign words and phrases are summum bonum for our CTET exam. Right. Summum, sorry, the foreign, the topic foreign words and phrases are important for our CTET exam. Are important, are summum bonum for our CTET exam. Right. So summum bonum means important. Next one is lingua franca. आपने ये वर्ड बहुत जगह देखा होगा. काफ़ी इंस्टीट्यूशंस भी अपने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के नेम भी लिंगुआ फ्रेंका हैं. ये मैंने काफ़ी देखे हैं. लिंगुआ फ्रेंका मीन्स कॉमन लैंग्वेज टू ऑल. कॉमन लैंग्वेज टू ऑल. लिंगुआ फ्रेंका नेम से अगर मैं बता दूं, इनकेस आपने नहीं देखा होगा, हल्द्वानी में एक इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू दिस आईटी सेक्टर, लिंगुआ फ्रेंका नेम से. इट मीन्स कॉमन लैंग्वेज टू ऑल. ठीक है. एक आई कैन से हिंदी इज द लिंगुआ फ्रेंका इन इंडिया, और आई कैन से हिंदी इज द लिंगुआ फ्रेंका टू द इंडियंस. इट मीन्स हिंदी क्या है, हम इंडियंस के लिए या इंडिया में ये एक कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी. राइट. नेक्स्ट वन 15th है हमारे पास, डी फैक्टो. डी फैक्टो मीन्स रियल. ही इज अ वॉरियर डी फैक्टो. He is a warrior. वो तो सच में एक warrior है. Right. So here de facto means real. Now we have some questions. One word substitution. Okay, who will tell me what is the meaning of one word substitution in Hindi? One word substitution क्या होती है, कोई बता सकते हैं? One word substitution. हम इसे कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द. ऑलराइट. अच्छा, मुझे पहला एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे. मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे. देयर इज अ क्वेश्चन एंड आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस. Read it thoroughly and try to give a correct answer. Okay. First one is a great lover of books. बुक्स का एक बहुत बड़ा लवर, जिसे बुक्स बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना उसे बहुत पसंद है. लवर, बुक्स का लवर क्या कहलाता है? बिब्लोफाइल. वेरी गुड. बिब्लियोफाइल. ओके. लवर ऑफ बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफाइल. तो जैसे हम बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, एक बार उन्हें भी हम देख लेंगे. बुकिश. बुकिश इस ऐसा कोई वर्ड हम यूज करते नहीं है. ठीक है.
बुकिश हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो बहुत पढ़ रहा है उसको बुकिश कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ लवर ऑफ बुक्स, राइट। बी ऑप्शन है आपका फ्लूवियोफाइल। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज फ्लूवियोफाइल? फ्लूवियोफाइल क्या होता है? जिस तरह से बिब्लियोफाइल क्या है, बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स, सिमिलरली फ्लूवियोफाइल इज द वन हु इज द लवर ऑफ रेन, जिसे बारिश बहुत पसंद है ना। बहुत लोग होते हैं जिसे बारिश काफी पसंद होती है, तो दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज फ्लूवियोफाइल। नेक्स्ट डी है आपका सेलेनोफाइल। एनी आइडिया, एनी गेसेस? I'm a Who is? person who is in love with moon, obsession with Very moon. good. The person who is the lover of moon is known as selenophile. ओके, आई थिंक ये सारे क्लियर हो गए। ये ऑप्शन भी क्लियर होना चाहिए हमें, सिर्फ ये नहीं कि हमें से उसका आंसर क्लियर हुआ है। बिब्लियोफाइल, the one who is the lover of books; pluviophile, one who is the lover of rain; and selenophile, one who is the lover of moon. We come to the next question. The government of people. The Democracy. government. Yes, Democracy. very good. Democracy and plutocracy. मैम डेमोक्रेसी Who will tell me? प्लूटोक्रेसी एक छोटा सा, प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है। छोटा सा ग्रुप हम कह सकते हैं, तो उस इसी छोटे से ग्रुप की एक गवर्नमेंट होती है, हम उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारे पास है ओलिगार्ची एंड मोनार्की। ओलिगार्की एंड मोनार्की। मोनार्की मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ किंग एंड क्वीन, राइट, दैट इज मोनार्की। बट यहाँ पे ओलिगार्की में थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। इट इज राइट नाउ, इट इज जस्ट आई एम कंफ्यूज अबाउट ओलिगार्की। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव फोर्थ वन, a statement which has several interpretations. Fourth Ambiguous. one. Very good. Ambiguous. And what is blasphemy? Can you tell me what is blasphemy? Blasphemy is like impious words uttered against God. ठीक है, ब्लास्फेमी क्या होता है? जब हम गॉड के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि इम्पायस कहलाई जाती है, दैट इज ब्लास्फेमी। और आकेज बॉयकॉट है हमारे पास। बॉयकॉट मीन्स किसी चीज का बहिष्कार करना, दैट इज बॉयकॉट। नेक्स्ट वन इज आर्केज्म। आर्केज्म वो होते हैं एक ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत लंबे समय से यूज में आ रहे थे बट अब वो यूज में नहीं है, ठीक है, दैट इज archaism. So in this third question, sorry, ambiguous is the correct answer. All right. Next one, a thing that is fit to be eaten as food. यहाँ पे अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसकी स्पेलिंग्स आप लोग देखेंगे। स्पेलिंग्स आप The लोग first one. Edible. Which one? First one. First one, edible. Very good. A thing that is fit to be eaten as food. ऐसी चीज या ऐसी वस्तु हम कह सकते हैं जो बिल्कुल फिट है मतलब खाने पीने के लिए, जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, दैट इज एडिबल। काफी लोग उसको ईटेबल कहते हैं बट ईटेबल इज नॉट द करेक्ट वर्ड। ईटेबल करेक्ट वर्ड नहीं है, हम उसे एडिबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, a person having ability to use the left and the right hand equally. First option is abdicate. Second one is handicapped. Third one is ambidextrous. And fourth one is anonymous. Take your time. मैम सी ऑप्शन। C option, ambidextrous. Very good. मैडम Yes, yes, ma'am. Ambidextrous is the correct answer. Okay. जो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनके पास ऐसी क्षमता होती है जो वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से बिल्कुल इक्वली लिख सकते हैं, उनकी इतनी एबिलिटी होती है, लिख सकते हैं दोनों हैंड्स को
इक्वली यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हम हैं, ठीक है, हमें राइट हैंड से लिखने की आदत है, काम भी कर लेते हैं, बट लेफ्ट हैंड से सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों हाथ से लिखने में या दोनों हाथों से इक्वली काम करने में दक्ष होते हैं, ठीक है। दो दिस टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज एम्बिडेक्स्ट्रस। इसी तरीके से है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग हमें कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डिकेट? एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है ना, जैसे अपनी किसी चीज से निष्कासित कर देना, ठीक है, या हम कह सकते हैं राजगद्दी से निष्कासित कर देना, उससे उतार देना, दैट इज एब्डिकेट। नेक्स्ट वन वी हैव, ओके, हैंडीकेप्ड आपको पता है, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, लाइक विकलांग हम कह सकते हैं, या उस दिव्यांग हम कह सकते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस आपको पता है। एंड एनोनिमस, एनोनिमस होता है जिसका कोई नाम पता कुछ मालूम नहीं होता है, दैट इज anonymous, right? Next one we have the life history of a person written by another। एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब लिखी गई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री। बायोग्राफ। Biography. वेरी गुड, Biography. बायोग्राफी, ओके। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है फिर, मैम अगर ये बायोग्राफी है तो? रिटन बाय सेल्फ। मैम सॉरी, रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वेरी हाँ। गुड। बिल्कुल। बायोग्राफी, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। बायोग्राफी जब एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री कोई और लिख रहा है, ठीक है, कोई और लिख रहा है, तो वो बायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी जब व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सिमिलरली व्हाट इज मेमोir? दैट इज नॉट मेमोयर, ओके, दैट इज मेमोir। Okay, now tell me, who will tell me what is the meaning of memoir? Memoir क्या होता है? Yes, It's basically a historical account, basic, very good. which is written by taking the personal information or personal knowledge about something. Very good. मेमोआर यही होता है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हम कह सकते हमारी यादों से जुड़ा हुआ। अब यादें तो ऑफ कोर्स वो पास्ट की चीजें हैं, राइट? तो पास्ट की चीजें हैं, उसे हम याद करके फिर वही सब लिख रहे हैं, तो दैट इज मेमोआर। नेक्स्ट वन इज ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मीन, आपने इसको हिंदी में इसका एक वर्ड सुना होगा अक्सर, यात्रा वृतांत। यात्रा। वेरी गुड, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में क्या होता है? हमने कहीं हमने कोई यात्रा की है, फिर हम क्या कर रहे हैं, उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, है ना? उस यात्रा का वर्णन हमने किया है, तो पूरा हमने बताया, लाइक हम कब कहाँ कैसे गए, हमने वहाँ पे कैसे टाइम स्पेंड किया, हमने वहाँ पे क्या किया, ऐसा था वैसा था, इतना सब कुछ हम एक ऐसा एक ट्रैवल अकाउंट हम लिखते हैं, तो दैट इज नोन एज ट्रैवलर। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा हमारा ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोआर एंड ट्रैवलर। Okay, let's come to the seventh question. A person who leaves one country to settle in another is known as a person. एमिग्रेंट। Very good. Emigrant is the correct answer. एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में, दूसरी जगह सेटल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। फर्स्ट, इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, डेडली। डेडली का मतलब बिल्कुल जो बहुत भयानक है, हम उसे कह सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तो कोई वर्ड ये यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं होता है। डिसिपल है हमारे पास में। डिसिपल का मतलब होता है जैसे शिष्य, ठीक है, किसी कोई भी हमारा रिलीजियस लीडर है, उसका फॉलोवर हम कह सकते हैं। रिलीजियस लीडर के फॉलो को हम शिष्य कहते हैं। शिष्य इज नोन एज डिसिपल। कैनिबल, कैनिबल बता सकते हैं कोई? कैनिबल, व्हाट इज कैनिबल? कैनिबल इज अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसे व्यक्ति, इंसान, ऐसे इंसान होते हैं जो ह्यूमन फ्लैश, दूसरे व्यक्ति का मांस खाते हैं। दोज पीपल आर नोन एज कैनिबल्स, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास 8 क्वेश्चन।
A person who lives for pleasure. A person who lives for pleasure, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचता है, मतलब अपनी पूरी लाइफ को सुख सुविधाओं के साथ जीना पसंद करता है. Hedonist. वेरी गुड, हेडोनिस्ट इज द करेक्ट आंसर. एंड इसमें ए है आपका ऑनरेरी. ऑनरेरी का मतलब आप बता सकते हैं मुझे? ऑनरेरी मीनिंग. ऑनरेरी मीन्स अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड. एक ऐसी पोस्ट पे काम करना जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती है, कोई सैलरी नहीं मिलती है. ठीक है, तो विदाउट सैलरी हम जब वर्क करते हैं किसी पोस्ट पे तो हम उसे कहते हैं ऑनरेरी. एंड नेक्स्ट इज जॉकी. जॉकी बहुत बार सुना होगा आपने ये नेम, ये वर्ड, सॉरी, जॉकी. हु इज नोन एज जॉकी? Jockey is a professional rider of horses. Jockey is a professional rider of horses in a race. आपने देखी होगी कहीं पे हॉर्स रेसेस की जाती हैं. ठीक है, हॉर्स रेसेस की जाती हैं, तो उस हॉर्स रेसेस में हॉर्स को जो राइड करता है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है, प्रोफेशनल पर्सन होता है जो उस हॉर्स को चलाने के लिए, उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जॉकी रखा जाता है, एक पर्सन रखा जाता है, दैट इज नोन एज जॉकी. राइट. नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, हेडोनिस्ट आपने बता दिया. अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचता है, सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है. ठीक है, और अपनी लाइफ को वैसे ही जीना पसंद करता है, दैट इज हेडोनिस्ट. मतलब उसका जीवन का एक, उसकी लाइफ का एक मेन मोटिव ही यही होता है कि उसे बस क्या करना है, खाना पीना ऐश करना है. राइट. नेक्स्ट वन इज जंबो. जंबो बता सकते हैं? जंबो इज अ बिग क्लमजी पर्सन, और एनिमल भी हम कह सकते हैं. जंबो एक बहुत बड़ा एक जानवर भी हो सकता है, एक क्लमजी पर्सन भी हो सकता है, काइंड ऑफ थोड़ा सा आलसी काइंड ऑफ. राइट, दैट इज जंबो. नेक्स्ट वन इज नाइन्थ वन, a list of words with meanings and explanation. A list of Glossary. words. Very good. Glossary is the correct answer. इसमें आपने फर्स्ट देखा, फर्स्ट है हमारे पास फ्लोरा, नेक्स्ट है मैम हमारे पास फोना, ग्लोसरी एंड होगा सी आई इज थिंक सो. द, हाँ, ग्लॉसरी है इसका आंसर. ओके. और डी हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया. फ्लोरा का मतलब बता सकते हैं? फ्लोरा तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप इसे थर्ड फोर्थ क्लास से सुनते आ रही है हाँ, फ्लोरा वर्ड. वनस्पति और जो जो वनस्पति वगैरह जो होती है ना मैम, जो हाँ जो हमारी वनस्पति वगैरह होती है ना, उसके लिए फ्लोरा फ्यूना यूज करते हैं. हाँ, उसके लिए कलेक्टिव एक वर्ड हम यूज करते हैं, फ्लोरा. ठीक है, तो फ्लोरा वही है जिसमें प्लांट्स वगैरह की हम बात करते हैं, पर्टिकुलर रीजन की हम बात करते हैं, वहाँ के प्लांट्स की बात करते हैं, तो दैट इज नोन एज फ्लोरा. सिमिलरली फोना. फोना बता सकते हैं? फ्लोरा और फोना, वैसे तो हम प्लांट्स के लिए, इनके लिए वेजिटेशन यूज करते हैं, फ्लावर्स ये वो यूज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के जब फ्लावर्स की बात करते हैं, वहाँ के प्लांट्स की बात करते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर रीजन. यहाँ पे देखिए मैंने मैम किस जिसमें वर्ड पे जैसे जी स्ट्रेस किया, पर्टिकुलर रीजन. हाँ, फोना. फोना मीन्स जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन के जब हम एनिमल्स की बात करते हैं. ठीक है, एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, इट इज नोन एज फोना. ग्लॉसरी आपने इसका आंसर बताया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन. ग्लॉसरी में क्या होता है, वर्ड्स दिए होते हैं, उनके मीनिंग्स दिए होते हैं, और उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, उनका एक्सप्लेनेशन दिया होता है. नेक्स्ट है हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया आपको पता है, इट इज अ काइंड ऑफ बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. इंसाइक्लोपीडिया में हर ब्रांच की नॉलेज हमें यहाँ से मिल जाती है, इंसाइक्लोपीडिया. ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज अ प्लेस where scientific experiments are undertaken. एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. फर्स्ट वन Lab. किचन, नेक्स्ट गैराज, नेक्स्ट मॉर्चुअरी,
and D is laboratory. So what will be the Laboratory. correct answer? Ma'am, the Yes, fourth one. fourth one. Laboratory is the correct answer. Very good. किचन आपको पता है किचन में कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गैराज। गैराज आपको पता है जहाँ पे हमारे व्हीकल्स को रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्चुरी। मॉर्चुरी जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज को रखा जाता है, दैट इज नोन एज मॉर्चुरी। एंड लेबोरेटरी इज द करेक्ट आंसर जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड 11th वन, a pen name used by an author. A pen name, Pseudonym. very good, pseudonym is the correct answer। आपने देखा होगा लाइक कहीं भी क्या होता है कि इसका मैम एक फर्स्ट ऑथर। ऑप्शन होना चाहिए मुझे लगता है इसका, हाँ, बिल्कुल सोडनीम। बिल्कुल मैम, pseudonym बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेन नेम एक हम एक ऑथर जब लिख रहा है, ठीक है, वो कुछ भी लिखता है, कोई भी टेक्स्ट वो लिखता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो रियल जो उसका रियल नेम होता है उस नेम को ना यूज करके एक पेन नेम यूज करता है, एक पेट नेम यूज करता है जिस नाम पे वो सारी बुक्स या कोई भी टेक्स्ट है वो पब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपकी बहुत सारे राइटर्स हैं, कोई आप एग्जांपल मुझे बता सकते हैं अगर आपके ध्यान में हो तो? हम्म। Ma'am, Eric Blair. एरिक ब्लेयर, ओके, एरिक The ब्लेयर। pseudonym the pseudonym was George Orwell. वेरी गुड वेरी गुड, जॉर्ज ऑरवेल का आपका सुडोनिम वो यूज एरिक ब्लेयर जो है वो यूज करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इसमें सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, ओके, आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ट्राई टू प्रोनाउंस इट द सेकंड वन। Pneumonia. Pneumonia, very good. Although it is starts from the letter P, but their P is silent. In this word, P is silent, and the correct pronunciation is pneumonia. Second is paraphrase. Paraphrase क्या होता है आप सभी जानते होंगे। paraphrase एक particular आपका जो पैराग्राफ है, जब हम उसको और भी क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं, तो दैट इज पैराफ्रेजिंग, राइट। नेक्स्ट इज हमारे पास है पैराडाइम। पैराडाइम मीन्स कंप्लीट चेंज, जब हम कंप्लीटली चेंज करते हैं किसी चीज को, बिल्कुल एक स्टेट से बिल्कुल दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज पैराडाइम, राइट। नेक्स्ट वन, हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मैम स्काई का हाईएस्ट Zenith. पॉइंट जो होता है जेनिथिन होता है ना। हाँ, एनीवन एल्स? मैम बी ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स? जेनिथ। अगर आप which sorry zenith, zenith is the correct answer, yes ma'am, B is the correct answer, zenith is the correct answer। highest point in the sky, स्काई की हम बात करें जिसमें जो आप मान लो माउंटेन है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, एक माउंटेन है, माउंटेन में बिल्कुल टॉप पीक पे देखेंगे आप, ठीक है, जो स्काई को टच करता हुआ मालूम होता है, ठीक है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है वो स्काई की तरफ। एक माउंटेन ले लो आप, ठीक है, तो उसका बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज जेनिथ। वेरी गुड, हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इज जेनिथ। पहला इसमें वर्ड माउंटेन, माउंटेन आपको पता है इसमें हाईएस्ट, ठीक है, माउंटेन का मीन्स पर्वत, बट इट इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ओके। एंड देन नादिर। नादिर इज द एंटोनिम ऑफ जेनिथ, इट इज कंप्लीटली अपोजिट टू जेनिथ। जहाँ पे क्या है, जेनिथ हमारा हाईएस्ट पॉइंट है स्काई का, तो नादिर क्या है, वहीं पे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड जू, जू तो आपको पता है चिड़ियाघर, तो ये इससे कहीं भी कहीं से कहीं तक ये रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट, next we have a person who always looks at the dark side of things। a person who always looks at the dark side of things। Pessimist. very good, pessimist is the correct answer। यहाँ पे ब्लाइंड नहीं हो सकता, ब्लाइंड सिर्फ डार्क साइड, तो क्या वो कोई भी साइड नहीं देख सकता, ब्लाइंड मीन्स अंधा, ठीक है, उस तरीके से। सेकंड वन इज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स
जो अनपढ़ है, ठीक है। अब अनपढ़ है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बैक साइड देख सकता है, बाकी जो उसकी नेक्स्ट साइड है वो नहीं देख सकता। ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन है, तो पेसिमिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो पेसिमिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये थोड़े से कैसे हम कह सकते हैं, यस, इनके लिए हिंदी में वर्ड है आशावादी, निराशावादी, ठीक है। जो पेसिमिस्ट होते हैं ये थोड़ा सा निराशावादी होते हैं, इनको हर चीज में सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है। और ऑप्टिमिस्ट थोड़ा सा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, इनका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होता है, तो हम इन्हें ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज 14, an incident occurring after death, पैसिस्ट। an incident occurring after death। ध्यान से सुने, मैंने इंसिडेंट कहा है, एक्सीडेंट नहीं कहा है, ठीक है। और ना ही ये स्पेलिंग है एक्सीडेंट वाली, ये इंसिडेंट है। एन इंसिडेंट कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसी हैपनिंग होती, कुछ भी ऐसा चीज होती है जो डेथ के बाद हो रही है, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट? एन इंसिडेंट occurring after death। posthumous. वेरी गुड, पोस्थमस। कोई भी चीज कुछ भी डेथ के बाद हो रही है तो उसे हम पोस्थमस कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल मैं बता दूं, कोई भी राइटर है, ठीक है, राइटर है, उसके उसने मान लो एक वर्क लिखा है, कोई भी वर्क लिखा उसने, उसके वर्क लिखने के बाद उसके ठीक है, अभी वो उसने सिर्फ वर्क लिखा हुआ है और वो पब्लिश होने के लिए गया है, और इस बीच क्या है, राइटर की डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ होने के बाद उसका वो वर्क पब्लिश हो रहा है, उसके डेथ होने के बाद वो वर्क पब्लिश हुआ है, तो हम कहते हैं दिस वर्क इज पब्लिश्ड पोस्टमसली, ठीक है। तो पोस्टमसली मतलब आफ्टर डेथ। इस तरीके से रेट्रिक है हमारे पास। रेट्रिक इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज, काइंड ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। स्टेबल है, स्टेबल एक बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ये आपने सुना होगा, आपने हम पढ़ते नहीं है एनिमल्स एंड देयर हाउसेज, वहां पे ये वर्ड यूज होता है। आप मुझे बता सकते हैं स्टेबल वर्ड, इसका मीनिंग? स्टेबल, स्टेबल इज द हाउस ऑफ, इच stable is the house made for horses। Horses. वेरी गुड, हॉर्सेस। इसको हम हिंदी में भी कहते हैं अस्तबल, है ना। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्टेबल, जो हाउस, एक लिविंग एरिया जो बनाया होता है हमारे हॉर्सेस के लिए, तो उसे हम स्टेबल कहते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा सारे जानवरों के जो हाउस होते हैं वो अलग अलग नेम से, जैसे काऊ के लिए शेड यूज होता है, डॉग के लिए कैनल यूज होता है, राइट। उसी तरीके से हॉर्स के लिए यूज होता है, हॉर्स का जो हाउस होता है दैट इज स्टेबल। नेक्स्ट इज एंटीडोट। एंटीडोट तो बहुत सुना होगा, व्हाट इज एंटीडोट? एंटीडोट इज काइंड A ऑफ sort of मेडिसिन। medicine. वेरी गुड, एंटीडोट इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन दैट इज गिवन टू काउंटरएक्ट पॉइजन। जब किसी इंसान ने पॉइजन खा लिया होता है ना, तो खा लिया होता है, या मान लो स्नेक का पॉइजन उसे लगा हुआ है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एंटीडोट दिया जाता है ना। जहर को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। पोस्टमॉर्टम आपका क्लियर है, एंड इंसिडेंट अकरिंग आफ्टर डेथ। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब जिस विजय पाना, क्या? ठीक है, जिस पे विजय नहीं पाई जा सकती है, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड इज नोन एज, यस, Invincible. invincible। Very good, invincible is the correct answer। And next we have the option impossible, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल। सी है हमारे पास इंटॉलरेबल, जिसे और टॉलरेट नहीं किया जा सकता, विच इज नॉट बियरेबल एनीमोर, दैट इज इंटॉलरेबल। इनोसेंट, इनोसेंट जो बहुत नादान होता है ना। तो ये 15 क्वेश्चन थे, आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो गए होंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन अगेन।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब एक क्विक रिवीजन होना चाहिए इसका। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एवरीवन। Bibliophile. वेरी गुड। द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। Democracy. democracy, हाँ। अ स्टेटमेंट विच हैज सेवरल इंटरप्रिटेशंस। Ambiguous. Ambiguous, very good. Next, a thing that is fit to be eaten as food. Yes, a thing that is Edible. edible, abital, abilid। ये एक्चुअली क्या है, मैंने सिर्फ इसमें स्पेलिंग्स आगे पीछे की है, इनका कोई मतलब नहीं होता है, राइट। जो बी सी डी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनमें सिर्फ हमारे वॉवल्स आगे पीछे हुए हैं, बाकी इन ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं, इनका कोई मीनिंग होता नहीं है। एडिबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन हैविंग एबिलिटी टू यूज द लेफ्ट एंड द राइट हैंड इक्वली। Ambidextrous. Very good. Ambidextrous is the correct answer. Next is the life history of a person written by another. Biography. Biography. अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, then what is autobiography then? Written by self. Very good. And what is memoir? It is a historical account which is basically written by the personal knowledge of a person. Very good. And what is travelogue? A book or a text written on the basis of your travel journey. Very nice. Very nice. Okay, next we have a person who leaves one country to settle in another. A Emigrant. person. Immigrant. So what? No, who is known as cannibal? Who's known as cannibal? अभी जस्ट 1 मिनट पहले ये सब A कुछ। person who eats flesh. वेरी गुड। अ पर्सन हु ईट नॉट ओनली फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश। Human ऐसे तो flesh. कोई भी पर्सन है ना, फ्लैश तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन कोई कोई एनिमल का भी हो सकता है। तो सिर्फ एनिमल का नहीं, जो ह्यूमन, स्पेशली जो ह्यूमन फ्लैश, एक ह्यूमन फ्लैश खाता है, राइट, दैट इज नोन एज कैनिबल। डिसिपल का मीनिंग आपको पता है, फिश। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर। Hedonist. एडोनिस्ट, वेरी गुड। जो सिर्फ सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, या सिर्फ सुख सुविधाओं को जीने के लिए ही वो कमाता खाता पीता है, राइट। ऑनरेरी, मीनिंग ऑफ ऑनरेरी। ट्राई टू रिकॉल इट। ऑनरेरी मीन्स अ पर्सन हु इज डूइंग एनी जॉब without any salary, that is known as honorary, right? And jockey जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है, ठीक है, एक हॉर्स ट्रेनर होता है, प्रोफेशनल हॉर्स ट्रेनर फॉर स्पेशली वर्क्स फॉर द हॉर्स रेसेस, that is known as jockey. Next, D is jumbo. Jumbo means a big clumsy person or a big animal, right? That is known as jumbo. Next we have a list of words with meanings and explanation. Glossary. Then what is encyclopedia? If it is A book glossary, which then has which has knowledge about knowledge, which everything gives in it. knowledge of uh, any other branches also. Okay, and what is flora then? Flora and fauna are basically plants and animals which grow in a particular region. Particular reason. Very good. Next, a place where scientific experiments are undertaken. A place where Laboratory. scientific experiments are undertaken. Laboratory. Laboratory. Very good. Laboratory. So what is mortuary? What is Where the dead meaning of bodies are mortuary? kept. Very good. Where dead bodies are kept. And what is garage? Where the vehicles are repaired. Vehicles are maintained. Okay, very good. Next one we have a pen name used by an author. Pseudonym. Pseudonym. Very good. So what is pneumonia? It is a disease. It is a disease. And what is paradigm? Uh, Paradigm is basically a pattern. Very good. Paradigm or pattern we can say, or a complete change. It is a complete change. Paradigm. Okay.
And paraphrasing? Is explaining something in a better way. Very good. Okay, very good. That was nice. Next, 12, we have highest point in the sky. Zenith. Zenith. And what is Nadir? It is opposite to zenith. That is opposite to no, Zenith. Very good. And mountain? Yes. ये तो बहुत इजी वर्ड्स है माउंटेन एंड जू माउंटेन मीन्स पर्वत एंड जू मीन्स आपका Where चिड़ियाघर the में animals are kept. हाँ नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स Pessimist. pessimist and what is the opposite of pessimist Optimist. optimist and who is illiterate then Who have not read, not gone to okay school. that cannot read or write that is illiterate and blind an incident occurring after death Posthumous. posthumous very good and what else antidote then It is a sort of a medicine which is given hmm. after a counterpart as a when a person has taken poison. Very good very good it is a antidote is a medicine which is given as the counteract of poison right जब पॉइजन आपको मे बी जैसे पॉइजन होता है बॉडी में तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए मेडिसिन के रूप में एंटीडोट दिया जाता है टेबल आपको पता है अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है रेटरिक रेटरिक होते हैं आपकी फिगरेटिव लैंग्वेज ओके फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जो अक्सर आपके लिटरेचर में यूज होती है एक कॉमन जब आप पोएट्री लिखते हैं या कोई भी वर्क लिखते हैं वहाँ पे रेटरिक का भी यूज होता है ठीक है एक फिगरेटिव लैंग्वेज है जस्ट लाइक पोम्स के लिए हमें फिगर्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है उसको एम्बेलिश करने के लिए जरूरत पड़ती है सिमिलरली वी यूज रेटरिक फॉर ओके posthumous is the correct answer in it next we have that cannot be conquered Invincible. invincible जिसे जिस पर विजय नहीं पाई जा सकती है ना जो जिसे हम क्या कर सकते हैं जिसे पराजित करना मुश्किल होता है दैट इज नोन एज इनविंसिबल नेक्स्ट वी हैव इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं है एंड नेक्स्ट इज इंटॉलरेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Which is not इंटॉलरेबल tolerable. Which is वेरी not गुड bearable anymore. वेरी गुड जिसे अब और सहन करना मुश्किल है दैट इज इंटॉलरेबल एंड एट लास्ट वी हैव इनोसेंट इनोसेंट मीन्स Innocent means it is a character in a not that person being uh, naive. yes very good it's the abstract character of characteristic of a person innocent क्या होते हैं okay that was all for today हम एक बिल्कुल स्टार्टिंग से एक क्विक रिवीजन तो नहीं हम एक बार फिर से पढ़ेंगे देखेंगे हमने कॉन्फैब और इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्या क्या सीखा है व्हाट वी हैव इन दिस टॉपिक Confab on English language, we read about the basic grammar, parts of speech, articles, figure of speech, antonyms, synonym, foreign words and phrases. Then we have 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, and we did some exercises related to these parts of speeches. All right, I think ये डेफिनेशन और कुछ 4-5 एग्जांपल्स थे ये इनफ थे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए देन we did articles and there are as I told you that only we have 3 articles a and the and then you get to know how to and where to use them then we have figures of speech we have a long discussion over this particular topic figure of speech and then we had an exercise on word and antonyms and then we had synonyms
And then foreign words and phrases, one word substitutions. We have 15 questions of one word substitution. So at last, I want to say, if all of you, if you need this PPT, I can share you in personally. Right? This was all for today, ma'am. Now it is over to you, ma'am. Thank you, ma'am. It's a very interactive and interesting session. I hope you all are enjoyed and learned something new from this session, and which will be beneficial for the upcoming exam of CTET. Uh, Thank each and every participant for your active participation, and a special gratitude goes to Ms. Pooja Arya ma'am for her Thank you, ma'am. exceptional and exceptional effort and dedication. And the resource person of tomorrow session will be taken by Mr. Sutar Singh Maurya, sir, on the topic of discussion on environmental science. Thanks everyone once again. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Pooja, ma'am. Well done. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you,